I always feel you should always be connected with your parents as well. Like talk to them, make them understand how the exam is, because sometimes pressure घर पे भी बनता है. तो pressure में also some people do not perform. Like वैसे they'll be scoring well in the mocks and everything, but NEET में when you're facing the real paper, तब you might not perform well. So I feel घर पे भी एक ऐसा environment होना चाहिए where the child can study properly and peace of mind होना चाहिए, and you should also take time to relax and go out. NEET, as we all know, is a knowledge-intensive test. It is a test that tests your ability to remember a whole range of topics. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers and initiated by Unacademy and Fiona. और आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं, उन्होंने NEET PG 2020 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 13 अचीव किया था. I am talking about Akanksha, and everyone, let's welcome her. Hi Aakanksha, Hi. Welcome to the show. Thank you so much. So first of all, Aakanksha, a very big congratulations. Thank you. इतना अच्छा रैंक लेकर आई है आप, you know, in this examination. And being March, it's Women's Day. It just makes me feel so proud to see women doing great in these kind of examinations. Yeah. तो हमें ये बताइए, this NEET PG exam itself, you know, how difficult is it? And like, you know, you personally, while you were preparing for this exam also, क्या मेजर चैलेंज आया होगा, you know, when you were preparing for this exam? Any such challenge that you had to face? So मैंने पहले के पेपर्स जब देखे थे उसके कंपैरिजन में दिस एग्ज़ाम वाज टफर. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. एंड जब प्रिपेयर कर रही थी तब द बिगेस्ट चैलेंज वाज दैट आई हैड टू रिमेंबर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स इन वन. लाइक आई हैड टू remember them in one day. I had to produce my answers on that same day. तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स, तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के आते हैं. यहाँ पे सारे 19 एक साथ आ रहे हैं एंड द ऑर्डर इज ऑल्सो जम्बल्ड अप. तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा आएगा, यू डोंट नो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी. सो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी कि ऑन द फाइनल डे आई एम नॉट गोइंग टू यू नो मेक अ मिस्टेक. Great. So, you know, since आपने Aakanksha अभी ही mention कर दिया the 19 subjects, I know it's a vast syllabus, right? Yeah. And it's over a long period of time. UG में I know हमारे learners जब UG में prepare कर रहे होते हैं, for them the 3 subjects to tackle that becomes such a challenge, and to remember 11 का syllabus 12 में कैसे याद रखूँ. This is a very popular question हमारे सारे learners के. But in the PG case, you are having to remember all the 4 profs by the end of it, right? Yeah. So, you know, guide us a little bit. Let's talk a little bit more about your journey in this examination. तो हमें थोड़ा सा बताइए about, you know, year-wise, if you can break it down, that, you know, how did you go on with your preparation? Let's start from the beginning. So, MBBS का course 4.5 years का होता है, and the first year is 1 year. तो उसमें you mainly focus on the subjects that are given to you. अब उसमें मैंने कोई और सब्जेक्ट को टच नहीं किया था. एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम, ये 3 सब्जेक्ट्स ओनली आई डिड प्रॉपरली, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिस पे यू कैन क्लियर मेडिसिन एंड सर्जरी एज वेल, और आगे के भी सब्जेक्ट्स यू कैन क्लियर. तो फर्स्ट ईयर में यू हैव टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इन केस यू हैव नॉट डन इट तो भी ठीक है. मतलब इफ यू आर इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर नहीं किया है, इट्स ओके, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं दिया था, अब नहीं याद है. I think सब, you know, एक नया वो फील होता है, we are in MBBS college first year. Yeah. तो पहले तो ऐसा भी होता है कि 12th में टॉप किया होगा, कोई अच्छे कॉलेज में दे, तो वो भी प्रेशर होता है कि फर्स्ट ईयर में आप सेम परफॉर्म करना है. तो फर्स्ट ईयर यूजुअली यू डू वेल, सेकेंड ईयर में आते आते यू चिल कि अब ठीक है चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स होते हैं. तो सेकेंड ईयर से आई जस्ट वांट टू एडवाइस कि मैंने भी ऐसा नहीं किया था, बट आई जस्ट स्टिल एडवाइस कि पे मोर अटेंशन टू द सब्जेक्ट जो सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नीट पीजी में भी इंपॉर्टेंट है और लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है. लाइक एज अ डॉक्टर, तो यू हैव पैथोलॉजी, you have pharmacology and you have microbiology. These 3 are the major subjects जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भी when you are a doctor they are going to be helpful. फिर थर्ड ईयर पे आते आते you have ENT and opthal and you have PSM. So PSM is not that important अगर हम practically देखें तो, but still NEET PG में it holds a huge like exam के point of view से it becomes important. Yeah, it becomes very important. तो उसको prepare करने का फिर अलग ही strategy होता है, and that you can do it when you're doing the internship. तो जब तुम थर्ड ईयर में हो तब तुम जैसे सब पढ़ रहे टेक्स्ट बुक में से वैसे कर लो, बट आगे चलते चलते
MCQ बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए. एंड इन द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स यू हैव योर मेजर टेक्स्ट बुक्स विच यू हैव टू रीड द फाइनल ईयर में. और MCQ बेस्ड प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंटर्नशिप में यू हैव टू डू, बट फाइनल ईयर में यू हैव टू फोकस ऑन द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बिकॉज क्लिनिकली पेपर इस टाइम क्लिनिकल ज़्यादा था एंड इट्स गोइंग टू बी क्लिनिकल नाउ. So you will have to focus on the clinical aspects of the subject. Great. तो since आपने ये point mention किया है, give us a little bit more idea. क्योंकि I know इससे पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे इस बार का पेपर भी, it's starting to focus towards clinical. So give us an explanation about the clinical, factual, because जब बच्चे, जब MBBS आप कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, you're studying it as factual, right? But at the same time, the way you're saying is now the paper's tending towards clinical. So give us a little bit about the differences between the two. And अगर किसी को clinical में भी अच्छा करना है, but they obviously need to know their facts also. So how do they do? What would be a good way of learning your facts so that you can apply it in the right way for the clinical questions? So अगर अभी तुम सेकेंड ईयर में हो तो वहाँ से तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है एंड यू विल हैव रोटेशन इन मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गाइनी. तो वो पोस्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना अच्छा है क्योंकि उससे तुमको केसेस के बारे में पता चलता है एंड द केसेस दैट यू सी वार्ड्स में वो बाद में नहीं दिखने वाले हैं. तो उसके बेसिस पे ऑल्सो यू कैन आंसर सर्टन क्वेश्चंस. आई एम नॉट सेइंग ऑल द क्वेश्चंस बट थोड़े यू कैन आंसर. अब फैक्चुअल नोट्स जो तुम्हारे पास है वो फैक्चुअल है तो उसको अप्लाई करना यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे अप्लाई करना है आगे जाए. तो उसके लिए यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर MCQs. तो आई फील कि अगर क्लिनिकल बेस्ड हो रहा है इट्स नथिंग टू वरी अबाउट क्योंकि है तो तुम्हारे फैक्ट्स एंड यू हैव देम विथ यू. बट जस्ट अंडरस्टैंड हाउ विल आई अप्लाई. लाइक लेट्स से यू हैव अ बिग क्वेश्चन, उसमें हिस्ट्री दी है बट द आंसर इज अ वन वर्ड आंसर. तो तुम आंसर्स को देखो, यू एक्सक्लूड के वाई नॉट दिस और अल्टीमेटली यू रीच द राइट आंसर. So you have to अगर history दिया तो उसमें you'll have the vitals, you will have the complaints of the patient. So focus on that, and then it doesn't seem very difficult. So and since the way that you are saying the question, थोड़ा बहुत आपको I think एक glimpse भी आ गया होगा of one of the questions that you had solved. So maybe if you can just share a little bit, like say suppose if you were to get a question like this, which is clinical, so what would be the main things you would take note of in the question, and उस question को आप कैसे solve करते हैं? So I just remembered one question जो मेरे एग्जाम में भी आया था and I was like falling behind, मतलब टाइम मुझे कम लग रहा था थोड़ा. So उसमें there was a history of an old man, उसका complaints दी थी, everything was given and it was a cardiac case. So वो तुमको question से पता चल जाता है if you just glimpse through it. And then I just saw the blood pressure of the patient. तो वो कम था उससे उसके बेसिस पे रीच द आंसर कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए. सो इफ़ यू जस्ट हाईलाइट ऑन द की वर्ड्स, जैसे वाइटल्स है एज आई मैंशन कि वाइटल्स तुम देखो, कोई सिवियर कंप्लेन है, उसकी एज है, अगर वो कोई एक रीजन से बिलोंग करता है तो इट कुड बी अ वेक्टर बोर्न डिजीज. तो ऐसे यू हैव टू जस्ट पिक आउट द की वर्ड्स क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू नो द कॉमन थिंग्स. वो अनकॉमन चीज़ें नहीं पूछते हैं. तो अगर तुमको कॉमन पता है जैसे ये एरिया में से ये डिजीज कॉमन है तो दे विल मेंशन कि ये एरिया का पेशेंट है. तो यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दी स्मॉल डिटेल्स. फिर अगर कुछ वाइटल्स में ब्लड प्रेशर शायद फॉल हो रहा है या फिर पेशेंट एसिडोसिस एल्कोलोसिस में, तो ये जो ऑब्वियसली अभी MBBS कर रहे होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा. बट दैट्स हाउ यू फोकस ऑन अ क्वेश्चन, दैट्स हाउ यू रीच द आंसर. ग्रेट. So मतलब हर क्वेश्चन में हमेशा the key points are there or the key keywords that you need to pick on. Because उसी से you can क्योंकि ये एग्जाम 1.6 लाख लोग दे रहे तो उनको भी पता है कि लोगों को क्या ज़्यादा समझ में आएगा, क्या what is the tendency, how are you going to answer a question. तो they frame the question in such a way you are able to reach the answer. There is no confusion between two answers. There is, but you can still reach the answer if you pay attention to these keywords. Great. That's a great tip here that जो आकांक्षा ने शेयर किया है आप सबके साथ, definitely worth noting. चलिए तो before I get on to the exam again, थोड़ा सा just wanted to know how were you as a student back in school, back in your undergraduation. If you can just tell us कि first of all why did you choose science, why do you like science, and 10, 12 and undergraduation में क्या scores थे आपके? So I have always been a first ranker, मतलब first standard से, so थोड़ा I'll come off as a nerd, but I also I don't study like all the day long. I don't do that. पर हाँ मतलब first standard से I've always stood first and I've always liked standing first. So I think science was just, my parents are doctors, so I thought कि हाँ I'll also take up science. I'll be good at it and I have a good memory. मतलब
I'm gifted that way. I feel like not a great memory, photographic नहीं है, but still I can remember easily. Okay. तो अगर मतलब नीट में भी factual questions आ रहे थे, I was able to answer them very easily. Okay. तो I think that's why I took up medicine and I realized I'll be good at it. और मुझे और कोई फील्ड में इतना इंटरेस्ट था भी नहीं. तो फिर I just went with the flow. I took up science. उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए. And then तो 10 and 12 में क्या थे आपके मार्क्स? Because this is very popular with our learners. They want to know. Okay, so in 10th I had 94%, and in 12th I had like 12th में we had MCQ based questions, so उसमें 98 थे. Great. And college में कैसा गया था आपका? College was also like I was among the top 5 rankers. Okay. So I've maintained that मतलब. चलिए. Yeah. Great. So you do love studying. Yeah, I do love studying. Okay. So I think that's you should know मतलब अगर UG में if someone is in the 8th or 9th standard, you should know if you love studying, then go for this profession. Because there's a lot to study. Yeah. It's endless. It's a very long process. Yeah. तो अगर कोई तुमको प्रेशराइज भी करे कि मेडिसिन ले लो, but you should know what you're capable of. True. There are other professions obviously which are respectable. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही होता है. तो True. yeah. तो मतलब you know this thing that you are trying to explain is क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है. बहुत, हाँ. So only if you really like the subject and you like the thought of studying constantly, Yeah. only then get into this. Because even I didn't know कि मेडिसिन में क्या आएगा, कैसे पढ़ना होगा. 11th 12th is very different. जी. उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है जो हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं. बट आई न्यू कि अच्छा पढ़ना बहुत है. लाइक माई पेरेंट्स और डॉक्टर्स उन्होंने भी बोला था कि बहुत पढ़ना होगा. तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? सो वो think about it and then take this field ऐसा है. Great. So I think this is again a very good career guidance जो आकांक्षा ने दिया है for all our learners जो शायद अभी आप लोग 10 में हो या 9 में हो. कुछ तो बच्चे अभी 8 से ही decide कर रहे हैं. So even if you're in your 10th standard, 9th standard and you're trying to think whether MBBS in future is the right stream for you, this is a very important thing to think about. और अगर आपको लगता है you're up for this challenge and this is something you really enjoy, then you can definitely go ahead with your MBBS dreams. ठीक है. तो चलिए आकांक्षा अब let's get down to the exam. ठीक है. क्योंकि नीट पीजी हो चुका है, एम्स पीजी आने वाला है. बहुत लोग शायद उसके लिए भी ट्राई करेंगे. क्या आप करने वाले हो एम्स पीजी? नहीं, I'm done with exams अभी. So you're happy with what happened with NEET PG? Yeah. Great. तो चलिए फिर भी since you must be knowing about the kind of syllabus and exam structure of AIMS PG also. तो थोड़ा सा if you can just highlight about what are the major similarities or differences between these two exams? So AIMS PG क्या होता है? नीट से ज़्यादा मतलब it's easier. The paper is easier but competition ज़्यादा है. Okay. Because AIMS PG भी पूरा clinical है तो उसमें you don't have to learn facts के इतना percentage है या फिर इतना inches है या numbers नहीं है उसमें ज़्यादा facts है. उसमें you have videos also, you have pictures, you have image based questions. तो अगर AIMS PG को क्रैक करना है, अगर तुमने नीट का पढ़ा है ऑलरेडी तो ग्रेट, उसके बेसिस पे भी हो जाएगा. बट फोकस मोर ऑन हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज. अगर तुम्हारे पास कोई फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट तो माइंड में है बट उसको अप्लाई फिर कैसे करना है कि स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे जाना है. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्स. पीजीआई में क्या होता है, यू हैव मल्टीपल आंसर्स. तो उसमें थियोरी शुड बी वेरी स्ट्रांग क्योंकि यू हैव टू रूल आउट कि कौन सा व्हाट क्वेश्चन आर यू गोइंग टू लाइक what answer are you going to choose. You have multiple answers. तो वो थोड़ा tricky हो जाता है and it's also very lengthy because you have to read each and every option. Okay. जो नीट में you can just rule it out. अगर ये नहीं है तो नहीं है ऐसा. Okay. Yeah. Great. तो चलिए अब थोड़ा बहुत तो we understood the differences. Syllabus is almost the same for both जैसे कि आपने कहा. So just let's get down to the exam itself. Let's break it down according to the 4 profs. तो first prof से start करते हैं. Talk to us more about कौन से subjects इस पे आते हैं and individually if you can tell all our viewers कि कौन से books and resources did you use for your preparation and individually if you could even tell अगर हर एक के लिए आपकी कोई अलग strategy थी to study that subject. Yeah. So in the first year 3 subjects आते हैं, anatomy, physiology and biochemistry. Anatomy के लिए I think every student has BD चौरसिया तो वो 3 books आती है and उसमें से ही most of them study. Gray's Anatomy कोई नहीं खोलता है. Dissection table पे या whatever you see is going to be helpful क्योंकि anatomy में एक visual memory होना important है. True. And anatomy if you see you are going to remember it for 3 more years. Okay. If you just read नहीं याद रहता है and it's impossible क्योंकि body में there are so many muscles, there are so many nerves, arteries, you can't remember everything. True. तो one important thing for anat I would suggest is कि you make जैसे nerves है तो उसका एक होना चाहिए कि इतना I want to write the points and then just fill it up. Fill in the blanks की तरह you treat the subject.
फिर फिजियोलॉजी में यू हैव मोर अबाउट द बॉडी प्रोसेसेस, तो उसके लिए आई यूज द बुक AK जैन, क्योंकि सी आई ऑलवेज फील कि इफ़ यू गो फॉर हाई फाई बुक्स यू एंड अप नोइंग द सेम एज इंडियन बुक्स भी पढ़ोगे तो इतना ही आने वाला है. तो आई हैव ऑलवेज गॉन विद इंडियन ऑथर्स क्योंकि दे राइट इट इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन. तो द सिंपल जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना बेटर है. हाँ, उतना अच्छा से समझ में हाँ एंड में तुम्हें समझना है. हाई फाई लैंग्वेज से समझ में नहीं आता है. तो यू ऑल्सो एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम. तो फिर फिजियोलॉजी में तुमको थोड़ा बॉडी प्रोसेसेस पे यू हैव, तो उस पर ध्यान क्यों देना है, क्योंकि मेडिसिन में इट्स प्योर फिजियोलॉजी. एंड देन यू हैव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में सारी बॉडी की साइकिल्स और सब आती है, तो इट्स मोर ऑफ मगिंग अप. तो उसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती, तुम जैसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सको वो होता है. And then second year में as you like for the last two subjects that you spoke about, उनके बारे में the books and resources that mainly आपने use किया. So physiology में I used AK Jain and in biochemistry I used Vasudevan. Okay. तो दोनों के लिए एक book. Yeah. So I have always referred to one book. दो तीन sources I don't usually go for because it's more confusing that. Great. And mostly you have studied from books. You've not used any maybe online. Not in the first, second, and third year. For final year, I went for online. Yeah, the notes I used, but first, second, and only through books. Yeah, only and classes में जो practicals पे चल रहे थे. जैसे एनेट में डिसेक्शन चल रहा है, फिर पैथो में आते आते यू सी द स्लाइड्स. तो ऐसा. ग्रेट. तो एक चीज़ जो मैं आपको पूछना चाहूँगी बिफोर वी मूव अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉफ, एनेट में जैसे आपने कहा डिसेक्शन जब चलते हैं वी मेक योर नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट अ लिटिल बिट अबाउट आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे, and maybe what were the major things you used to note down जब आप एनेट में देख भी रहे थे, say from the very first year, because यही जाके एंड में आपको रिवाइज करनी है, तो क्या क्या मेजर थिंग्स आप नोट डाउन करते? डिसेक्शन टेबल पे व्हेन यू आर देयर, तो द प्रोफेसर वो सामने से ही बताता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पे अटेंशन टू इट. जैसे एब्डोमिनल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे विल हाईलाइट दैट. तो जब भी तुम पढ़ रहे हो तुम्हें वही पढ़ाने वाले जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछते हैं जी. और पूछता है एज इन तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं, नीट PG में भी उसके बेसिस पे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी में भी वो इम्पॉर्टेंट एरिया है. तो इसीलिए जब भी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे पेरिटोनियम चल रहा है या ऐसी कोई टॉपिक है जैसे न्यूरो एनाट चल रहा है, तो यू जस्ट फोकस तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है, घर पे जाके उसको तुम एक बार डिटेल में पढ़ लो, और फिर उसमें से ऑब्वियसली तुम्हें जितना याद रहे वो, और कोई भी इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहने वाली है जी. तो उसमें से यू आर गोइंग टू रिमेंबर जो इंपॉर्टेंट है. तो वैसे भी रेयर चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं याद रहती है. तो व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स, तुम्हें जितना याद है उसकी नोट्स बनाओ, जो तुमने क्लास में सुना है उसके बेसिस पे तुम नोट्स बनाओ, या फिर तब के तब नोट्स बनाओ, तो उसे पढ़ के भी तुम्हें जो याद रह रहा है उस पर फोकस करो. Great. So चलिए, so that was the first year, prof. We moving to the next. So second year में there are 4 subjects. Pathology आता है, and pathology and physiology. Physiology is what is normally going on in the body, and pathology is the abnormal processes. So medicine के लिए you have these 2 subjects, and जिस पे focus करना है. Then pharmacology is all drugs. तो अब drugs में क्या है, there are so many new drugs that are coming up. उसके लिए you will have to stay updated. अगर तुम नीट PG दे रहे हो तो तब you will have to be updated, but जो general है वो तुमको अभी से you have to focus on it. And for pathology I used Harsh Mohan, which is also an Indian author. So I have always been a fan of Indian authors because images are also there, you have a proper explanation and everything is there, it's sufficient. True. फिर pharmacology में everyone uses KD Tripathi, but I have also liked this book शानबाग, तारा शानबाग, जिसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया था, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में दिया था, विच मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजी. बट फॉर द ड्रग्स KD Tripathi is sufficient. And then you have microbiology, जिसके लिए मैंने अनंत नारायण यूज़ की थी. And microbiology is all parasites and viruses and bacteria and all. So it is a difficult subject. Exactly. मैं यही पूछने वाली थी because मैं recently I met a few others also जो बोल रहे थे microbiology was their subject of difficulty. क्योंकि और actually second year में 2 subjects हैं जिसमें सब learn करना है. फार्मैक में ड्रग्स सारी learn करनी है, माइक्रो में बैक्टीरिया है, उसका कहाँ ग्रो होता है, कैसे ग्रोथ, क्या डिजीज करता है, वो सब लर्न करना है. बट उसमें भी रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए होती है. इट्स नॉट ईजी, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लाई एंड से कि अरे हो जाता है, बट रिपीटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें. तो पहले से इफ यू स्टार्ट इट्स बेटर. 1-2 बार में यू विल फील कुछ भी नहीं आता, बट बाय 3-4 टाइम्स यू विल फील कि अच्छा चला है. आप क्या बोल रहे हो, यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट. ओके. तो फिर भी लाइक इफ आई वाज टू जस्ट आस्क यू कि उन सबको भी याद करने के लिए, बिकॉज जितना मैं समझ रही हूँ इन दोनों के लिए रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो इन दोनों को ही करने के लिए भी आपने भी कितनी बार, या मे बी हाउ ऑफन वुड यू गो बैक टू रिवाइज इट? आई थिंक सेकेंड ईयर में जब तुम होते हो तो एग्जाम्स भी
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, लाइक एवरी 6 months एग्ज़ाम होती है, जी। तो आई थिंक तब तो तीन बार तो यू आर वैसे भी डूइंग इट, और एक दो बार यहाँ वहाँ यू रिवाइज इट, तो आई थिंक 5 to 6 times यू एंड अप डूइंग द सब्जेक्ट नो मैटर वॉट, ओके, बिकॉज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी पढ़ना है, तो उसमें भी साथ साथ हो जाता है, मतलब अगर तुमको सामने से नहीं भी करना है तो भी इतनी सारी एग्जाम्स है कि यू विल एंड अप रिवाइजिंग इट। ग्रेट। तो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉफ, मुझे कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स टू लर्नर्स के वो भी पूछ लेती हूँ आपको। एक तो है कि सिंस जैसे कि अभी आपने कहा कि MBBS के भी एग्जाम्स चल रहे होते हैं, आपके ईयर के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, प्लस यू आर थिंकिंग अबाउट योर PG एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो, तो इसमें हाउ डू यू कीप दैट बैलेंस बिटवीन what how much to study for your MBBS और कितना PG एग्जाम के बारे में सोच के आप प्रिपेयर कर रहे हो, हाउ डू बैलेंस? एक फियर होता है इसमें कि MBBS के लिए पढ़े, काउंट नहीं होने वाला, नीट PG के लिए प्रिपेयर करें, बट लोग ये नहीं समझते कि नीट PG के लिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, कोर्स तो MBBS का ही है, अलग कोर्स नहीं है, बुक्स भी सेम है, तुम्हारे पास जो नोट्स तुमने कहीं से बनाई होंगी, कोई क्लासेस ज्वाइन करके बनाई होंगी, वो भी इन्हीं बुक्स में से बन रही है। तो मुझे हमेशा से लगा है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो तब के तब अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। डोंट गो फॉर के अभी सेकेंड ईयर में मैं हूँ, थर्ड ईयर का स्टार्ट कर लूँ, थर्ड फाइनल का स्टार्ट कर लूँ, अभी जो है तुम्हारे हाथ में उसको अच्छे से मतलब मास्टर दैट आई फील। तो सेकेंड, जैसे आपने मुझे पूछा कि कैसे प्रिपेयर किया था MBBS के लिए और नीट PG के लिए, तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो तुम्हारे पास है अभी उसको अच्छे से करो। ओके, सो ये मत रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से आप फोर्थ ईयर में क्या टॉपिक है PG के लिए वो सोचने को शुरू कर दो, फर्स्ट को फर्स्ट में ठीक से करो। हाँ। ओके, ग्रेट। तो चलिए एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी इज आउट ऑफ से दीज फर्स्ट 2 प्रॉफ्स जो आपके गए हैं, बिकॉज आई थिंक लास्ट आई इवन स्पोक टू मुस्कान, उन्होंने मुझे बताया था कि ये फर्स्ट 2 years के बेसिकली जो प्रॉफ्स होते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग नए MBBS में दे हैव कम इन एंड ऑल एंड दे टेंड टू not pay too much attention in the first 2 years, जबकि these two become the basis of your foundation, जो आपके end में third fourth prof में आके जरूर काम आता है। So if I was to ask you कि first 2 में, since I know you are always a studious student, but in दोनों में भी in these 2 profs, if I was to ask you, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट वाइज भी ऐसे टॉपिक्स थे which gave you a lot of difficulty, मतलब जो really difficult था पढ़ने में या याद रखने में? So सेकेंड में it was फार्माक एंड माइक्रो, क्योंकि उसमें ये क्या रटना बहुत होता है, तो मुझे हमेशा से आई लाइक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड देन अप्लाई देम। ओके, बट इफ यू हैव अ गुड मेमोरी, मतलब मेरी अच्छी मेमोरी थी तो मुझे फिर भी याद रह जाता था, फिर भी इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, लेट मी रीफ्रेज दिस, लेट मी जस्ट आस्क यू इन दिस वे कि क्योंकि आपने पेपर दिया है, पेपर वाइज पेपर में जब आपने देखे क्वेश्चंस भी, व्हाट डू यू थिंक व्हिच वर द टॉपिक्स जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं या डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है? तो फर्स्ट पार्ट में यू हैव एनेट फिजियो एंड बायोकेम, तो क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो तुमको इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हारा टाइम जी, ऐसा नहीं है कि किसी और से ज्यादा आ रहे हैं, दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और सेकेंड ईयर में चलो फॉरेंसिक मेडिसिन एक है जो आई डिडंट मेंशन इट, क्योंकि वो वैसे भी सब लास्ट 2 days में पढ़ रहे होते हैं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट IPCs को लर्न करना है जी, और इतना मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं फ्रॉम MBBS पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए वो अगर हम साइड पे रखें तो बाकी जो ये 6 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मिला के, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए सबको, उसमें ज्यादा कम नहीं होता है, सिर्फ जो रटने वाला है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तो थोड़ा, क्योंकि वो एंड में याद नहीं रहते इसीलिए। मगर आपका भी यही मानना है कि ऑल टॉपिक्स बिकम इम्पोर्टेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो एनेट अच्छे से कर लिया फिजियो चलेगा, जानते हैं सारे को इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ग्रेट, तो चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉफ देन। सो थर्ड प्रॉफ में 3 सब्जेक्ट्स ही आते हैं, वो एक्चुअली काफ़ी रिलैक्स ईयर होता है क्योंकि उसमें PSM आता है जो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो यूजुअली हम सब उस पर फोकस करते हैं तब, तो 2-3 महीने लास्ट में सब पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें लास्ट 2 months इज ओनली PSM कम्युनिटी मेडिसिन और ENT ऑफ्थाला वेरी स्मॉल सब्जेक्ट्स, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ENT में भी तुम टेक्स्ट बुक्स पढ़ना अगर रखो तो अच्छा होगा, क्योंकि नीट PG में वो हेल्प करता है। तो मैंने ढिंगरा एक टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ा था एंड आई रियली लाइक द टेक्स्ट बुक, तो आई डोंट नो कितने लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना सब्जेक्ट है नहीं, बट आई वुड स्टिल फील कि अगर तुमको अच्छा लगता है पढ़ना तो प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। एंड फॉर ऑफ्थाल एक खुराना करके है, उसमें भी जब क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो तुम ज़्यादा तुम्हारे क्लासेस में अगर लर्न करो तो वहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि MBBS में ये सब्जेक्ट कोई पढ़ाता नहीं है जी।
तो अगर तुम कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो वहाँ से पढ़ लो, या फिर ऑनलाइन तुम कोई मटेरियल देख रहे हो तो वहाँ से तुम ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ENT ऑफ्थैल्म। वरना PSM तो आई वुड सजेस्ट के नीट के लिए जस्ट डू इट इन द लास्ट इंटर्नशिप का ईयर। ओके। हाँ। और इस थर्ड प्रॉफ में से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको पर्सनली डिफिकल्ट लगता था? तो ऑफ्थैल्म में देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स, जैसे स्क्विंट है तो वो मुझे टफ लगा था, और वो मुझे इंटर्नशिप में जाके समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। Okay. तो जब मैं थर्ड ईयर में थी तब आई डिडंट नो कि कैसे इसको अटेम्प्ट भी करना है क्वेश्चन Okay. को। तो फिर भी उसको, क्योंकि आपको ईयर के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना था, हाँ. तो उसको हाउ डिड यू डील विद इट? तो तब हमारे टाइम में लाइक वी न्यू के ऑफ्थैल में से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और हर जगह मोस्टली ऑफ्थैल में ऐसा ही होता है, ऑफ्थैल ENT में कुछ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें नहीं था, तो तब आई डिड नॉट डू इट। बट अगर अभी भी इफ़ यू वांट टू स्टडी इट तो फिर आई वुड सजेस्ट तुम किसी सीनियर की नोट्स ले लो, उसको एक बार समझ लो, किसी सीनियर से समझ लो अगर उनके पास टाइम हो तो, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट। बिकॉज जब अभी मैंने इंटर्नशिप में किया तो आई रियलाइज इट वाज नॉट डिफिकल्ट। ओके, हाँ, ग्रेट। तो आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक अगर कोई सीनियर भी हो आपके पास गाइड कर देने के लिए, इट कैन बिकम इजियर। या ग्रेट। तो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे कि आपने कहा कि ऑप्थैल में भी देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं, सो हाउ इम्पोर्टेंट और व्हाट वाज द रोल फॉर यू आल्सो इज फॉर द PYQs एंड मॉक टेस्ट? ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड हाउ ऑफन वर यू रिफरिंग टू दीज? तो मॉक टेस्ट एंड ऑल मैंने तब तो नहीं दिए थे थर्ड फर्स्ट में, मतलब इन द थर्ड ईयर आई डिड नॉट अटेम्प्ट देम, बट इंटर्नशिप में इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट गिव्स यू अ प्रैक्टिस कि नीट में कैसे तुमको अपीयर करना है। ओके, लाइक कितना टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कितना टाइम किसको अलॉट करना है। बट वैसे क्वेश्चंस, द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर इट इज़, क्योंकि तुमको भी एक फियर चला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से जी। ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को असेस कर रहे हो, बट एक फियर जो होता है कि पहली बार तुम 300 क्वेश्चंस को फेस करोगे, उससे अच्छा यू गिव मल्टीपल टेस्ट आई फील। तो आपने आइडियली फोर्थ ईयर में आके यू स्टार्टेड गिविंग दीज टेस्ट? नो, आई स्टार्टेड इन इंटर्नशिप। मतलब फोर्थ ईयर में भी आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट द नीट PG प्रिपरेशन, तो इंटर्नशिप वाज माय मेन ईयर जो था प्रिपरेशन का। ओके, हाँ। एंड जैसे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिफर करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक फॉर ऑल दीज टॉपिक्स? कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं क्या? या लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यूजुअली रेपिटेटिव होते हैं, बट नीट PG में भी अगर तुम एक टॉपिक देख लो, उसका क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अलग अलग रैमिफिकेशंस आ सकते हैं जी। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सिर्फ टॉपिक्स देखो। नीट PG के लिए सेम MCQ तो नहीं आएगा, बट वो टॉपिक हाईलाइटेड है वहाँ पे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम उस टॉपिक से जो भी कर सको वो कर लो। फिर अगर कोई टॉपिक पे से कुछ आ ही नहीं रहा है, अगर तुमने लास्ट 5 ईयर्स से ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स के देखे तो फिर इट्स बेटर तुम उसको अवॉइड करो। ओके, हाँ, ग्रेट। तो द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्वेश्चन MCQs के लिए। एंड अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिर क्वेश्चंस आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो रिपीट थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द फाइनल प्रॉफ देन। सो फाइनल ईयर में देयर आर 9 सब्जेक्ट्स एंड मतलब इट सीम्स अ लॉट क्योंकि 9 एक साथ 1 ईयर मिलता है, और ऑलरेडी थर्ड फर्स्ट में तुम थोड़ा रिलैक्स हो चुके होते हो। बट या मेडिसिन सर्जरी के लिए जैसे मैंने कहा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स यू हैव टू फॉल बैक ऑन देम, तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड ईयर के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब नाउ इफ़ यू आर इन द फाइनल ईयर और नहीं किए हैं तो भी मेडिसिन के लिए देयर आर सिंपलर बुक्स जिसको सिंप्लीफाई करके वो लोग समझाते हैं। जैसे मेडिसिन में आई यूज्ड बुलूर, आई हैव नेवर once read Harrison in my life, जो because you're Indian author supporter. तो मैंने उसमें से पढ़ा था, उसमें भी you have nice pictures and flow charts, और कोई एक पिक्चर में सब कुछ ग्राफिकली दिया होगा, तो that makes it very easy to understand the subject. Exactly. क्योंकि हैरिसन में तुम पढ़ते हो, you lose track, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, टाइम वेस्ट होता है, और एंड में बेटर तुम उससे ही पढ़ रहे हो इंडियन ऑथर से। सो मेडिसिन के लिए आई यूज दिस बुक। फिर सर्जरी में आई यूज SRV करके एक बुक आती है, तो उसमें भी सेम इट्स लाइक 11 बेली का शॉर्टर वर्जन है, मोर कंसाइज्ड वर्जन ऐसा। फिर पीडियाट्रिक्स के लिए आई रेफर्ड टू द नोट्स, जो मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे उसकी नोट्स पढ़ी थी क्योंकि वो मेरे को सफिशिएंट तब लगा था। बट अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो आई ऑल्सो रेफर्ड टू घाई उसके लिए इन द फाइनल ईयर। इंटर्नशिप में जाते जाते आई वॉज मेनली फोकसिंग ऑन द नोट्स। एंड ऑब्स गायनी के लिए आई वुड से दत्ता इज़ अ वेरी गुड बुक, क्योंकि नीट PG में भी मुझे उससे हेल्प हुआ था। ग्रेट। या तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि ऑल थ्रू सिंस यू ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, तो से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल द एंड, राइट, फोर्थ ईयर तक भी, टेल अस अबाउट लाइक व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और क्लासेस का व्हाटएवर टाइमिंग्स यूज्ड टू बी फॉर द शेड्यूल। आई एम श्योर इट माइट बी डिफरेंट फॉर ऑल 4 years, बट इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया ऑफ हाउ वाज योर डे इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो जब एग्जाम्स आने वाली होती थी तब इट यूज टू गो लाइक आई यूज टू स्टडी फॉर 6 to 8 hours, उतना हो जाता था। बट एग्जाम्स के बिना भी आई यूज टू पुट इन 2 to 3 hours
विद द क्लासेस लाइक कॉलेज होती थी 5 o'clock तक, उसके बाद I'll do my thing, and then रात को I used to give some amount of time to studying also. क्योंकि Even when no exams. Yeah, because I like studying. तो मैंने पहले से I used to go through the topics जो तब उस दिन पढ़ाई या फिर last week पढ़ाई होगी, तो I just go through them. Because I like to be in touch with the books. तो all 4 years में similar था. All 4 years I've done this. Yeah. On a daily basis around 2 to 3 and exam आते आते 5-6. I think वो first standard से मेरा ऐसा था. चलिए nice. Yeah. तो हमें ये बताइए like since I can understand कि you love studying. Apart from that और क्या पसंद है आपको करना? So I like gymming as well, and I actually that helped me a lot even during the preparation क्योंकि it's a release I feel. तो एक वो मुझे अच्छा लगता है. I like baking. Okay. So I bake also like कोई भी मेरे फ्रेंड की बर्थडे होती है, so I usually bake the cake. So I like. Oh, I think we missed a cake today. So yeah, these are my two hobbies. Yeah, I like. And it also helps you to release the stress, tension, whatever. And since हम stress पे ही बात कर रहे हैं, I want to ask you that these kind of examinations, especially NEET, जैसे I said right in the beginning, is highly competitive. इतना कुछ है पढ़ने को. जो लोग select हो जाते हैं, when the names come on the rank, it's like really nice. But there are so many more जिनके नहीं आते हैं, right? And then they get into depression, stress. बच्चे UG के लिए अभी 8-9 से पढ़ रहे हैं, with all that tension, coaching classes, repeated number of hours of studying. They are, even foregoing, say, play and all, and बस पूरे time पढ़ो. So, इसके लिए like आप क्या बोलोगे for the ones who are feeling that demotivation कि भाई मेरा नाम तो आ ही नहीं रहा है, or maybe when I'm giving the box मेरे तो scores अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, right? UG में जैसे सबको 600 पहुंचना है, PG में 1000 plus पहुंचना है, तो आप उनको क्या करोगे? How can they balance, manage this stress? So मतलब अगर तुम्हें पता है कि तुम you're not that good at studies, average हो या ऐसा कुछ है, start early I feel. So you think even an average student can do it? Yeah, obviously. मतलब मेरे काफ़ी friends हैं जिन्होंने भी क्रैक की है और उनका MBBS के टाइम में they were not that good. But start early. Like मैंने 10 months दिए थे. Maybe you start a year earlier or 2 years earlier. You should know your strengths. जैसे I know कि I have a good memory. तो अब मैं factual question आएगा तो I'll not pay so much attention to it. मतलब मेरा टाइम ज़्यादा उसमें होगा जहाँ अप्लाई करनी है नॉलेज. तो if you should know your strengths. जैसे अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो फिर just give some amount of your time to factual questions. बाकी का टाइम तुम कुछ और करो. If you are good at clinical questions तो फिर that way you should know what you are good at. And if you start earlier, you will have more time to revise. NEET is basically जितना तुम ज़्यादा revise करो अच्छा है तुम्हारे लिए. Great. Yeah, so you can start earlier. You can I always feel you should always be connected with your parents as well. Like talk to them, make them understand how the exam is, because sometimes pressure घर पे भी बनता है. तो pressure में also some people do not perform. Like वैसे they'll be scoring well in the mocks and everything, but NEET में when you're facing the real paper, तब you might not perform well. So I feel घर पे भी एक ऐसा environment होना चाहिए where the child can study properly and peace of mind होना चाहिए, and you should also take time to relax and go out. Great. Yeah. Great. So since आपने अभी mention किया that a lot of times even if अच्छे से आपको सब आता हो, main paper में exam जब में paper आपको मिलता है, then things can completely change. Yeah, you might just blank out, yeah, right? Yeah. So talk to us about your exam day experience and strategy जो you that you kept for solving the paper. So I had given a lot of mock tests. मैंने पहले से like in the last month every weekend I used to give a mock test. तो time management का मेरा clear था कि मुझे कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, कितना अलॉट करना है टाइम. बट फिर भी फाइनल एग्जाम आते आते बिकॉज यू आर मोर केयरफुल विद द क्वेश्चंस, यू टेंड टू वेस्ट मोर टाइम. तो मुझे भी टाइम थोड़ा कम लगा था, बट वो ये यू हैव टू कीप योर कूल. इफ़ यू लूज इट यू आर गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम. तो पहले से तुमको एक वो होना चाहिए कि हाउ विल आई मेंटेन माई कूल. अगर एग्जाम में कुछ गलत हो गया, आवाज़ आ रहा है कहीं से, एनीथिंग, मतलब डिस्टर्बेंसेस, या तो आप क्या करते थे? I used to block it out, मतलब completely block it out. मेरे घर पे जब मैं टेस्ट देती तभी भी बहुत आवाज़ आता था. So I tried giving tests in that environment कि जहाँ पे disturbance already हो, am I able to concentrate, अच्छे marks आ रहे हैं, already आजू बाजू से neighbors shouting, ये वो, उसमें I've given my test. So you would purposely sit in a place with a lot of disturbances to see अगर आप उस सबको block out कर सकते हैं. हाँ, so then it depends on you, but you have to try to block it out. Okay. Yeah. That's great. तो चलिए एग्जाम डे पे सोचिए, आप एग्जाम डे पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, आपको पेपर मिल गया. Then what happened? And what did you do first before reaching the center? बहुत लोग बोलते हैं सवेरे सवेरे मैंने एकदम कुछ भी बुक नहीं टच किया, I was just staying relaxed. Yeah. तो आपने क्या किया था?
So the night before, I called my sister. Like she doesn't stay with me, so I called her. We all sat together. We had proper dinner and everything. And सुबह जब I woke up late, आराम से 10 o'clock because I wanted a good sleep. फिर I didn't study that day. Obviously मैंने decide किया था कि मैं previous night 8 o'clock के बाद I'm not going to touch the books. तो वो मैंने सब बंद कर दिया था. I was just relaxing. I was talking with my family. I was trying to not think about the exam. So I was asking them to distract me. तुम कुछ भी बात करो. तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करना है, झगड़ा कर दो. Just don't talk about the exam. Okay. Yeah. So that's what that's my strategy. कि exam के दिन you should not be stressed. Okay. उसके पहले I don't know कितना होगा वो तो even I can't remember कि I was. So exam के दिन I was not stressed, and then when I reached the exam center, I reached an hour before so that I could calm my nerves and everything. Or half an hour before, you have the blank screen in front of you. So I was trying to not think of the exam. No recall, not at all. I was thinking of my college days. कुछ भी random thoughts were coming in my heart. जो भी सोच रहे हो. Anything, yeah, but not about the exam. Okay. And when the exam started, obviously first question पे you have your heart pumping very fast, and I was also tachycardic and sweating. But जैसे I moved to the fifth question, it settled down. क्योंकि then I realized कि अच्छा अब ये मेरी mock exam है, ऐसे ही देने वाली हूँ मैं. Okay. हाँ, तो final मतलब 5-6 questions के बाद I was pretty relaxed. और कितनी स्पीड से बढ़ रहे थे आप? How much time were you taking? So part A में you have 50 questions, तो उसमें I gave half an hour. Part B में you have 100 questions, so double of that, 1 hour, and then 1.5 hour for part C. Okay. And I used to put I put a lot of questions in review. तो ये time management थोड़ा मेरा वो हो गया था, and last में I had like 1 hour for the review questions, and they were a lot. How many? Around I think 70. I had 70 questions to review. Okay. And review में you have to be more careful. और review के लिए आपके कितना time बच गया था? 1 hour था. 1 hour था. Yeah. Okay. तो 70 questions थे and I had 1 hour. Okay. तो it seems के काफ़ी time है, but when you're reviewing you're more careful, you're more cautious कि अब mistake नहीं करनी है, review में डाला है. जी. और कुछ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में सोचने में भी time जा रहा है. तो थोड़ा उसमें स्पीड मुझे रखनी पड़ी थी. और वो जब मेरे पास बड़े क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, आई used to see the vitals and then answer. तो मैंने पूरे questions भी नहीं पढ़े होंगे. Okay. So that same trick जो आपने समझाया right from the beginning. तो हाँ, when I came out of the exam hall, I was like कि मैंने question भी नहीं ठीक से पढ़ा है. But now I realize कि it's not that important. Just focus on the keywords. Okay. तो क्या कुछ questions छूटे थे? Do you remember? नहीं, I just left one question. Just one like, question. I had no idea. किस topic पे था? Any idea? Now I don't even remember. चलिए great. Yeah. तो एक question छूटा था आपका, and exact कितने पहले खत्म हुआ होगा paper? The last second. हाँ, मतलब मैं उसको attempt करने वाली थी. I was going to guess. मतलब मेरे कुछ 20 questions मैंने pure guesswork लगाया था. Okay. I had no idea ऐसा था. Okay. तो I was about to guess और फिर the time was up and submit हो गया, and I was like कि चलो कोई बात नहीं, wrong ही होने वाला था. और when you said this, you know, इसी पे मेरा एक next question है. When you said कि 20 questions आपने almost guess किए थे, right? तो इस पे भी like if you can tell us that when should you take that guess, because the guess should also be very calculated guess, right? Yeah. तो कब लेना चाहिए वो guess? So मुझे लगता है कि competitive exams में you have to be aggressive. So if you are sure of, let's say I was sure of, like I had properly answered 240 questions. 60-70 मेरे review में थे, तो 230 I had answered properly and 70 were in review. अब उसमें भी जैसे 50 questions थे, उसमें 50-50 था कि 2 answers में I'm confused. तो उसमें I went with my gut feeling, and because I know the subject also, I had studied, तो obviously मुझे थोड़ा idea था कि this could be the right answer. Okay. And then the last 20 questions जहाँ पे मुझे कोई idea नहीं, I was like कि I want to attempt them कि in case let's say अगर 20 में से if I score 5 correct, I'll end up with 0 marks. And the probability of having 5 correct is a lot more than having, you know, all of them wrong. तो फिर ये strategy से I attempted it कि अगर चलो 5 भी right हो गए तो 0 होगा. But अगर if I don't attempt them at all, तो भी same 0 ही रहेगा. तो exactly. Yeah. So rather take that. Yeah. Attempt. And what if I have 10 correct, you know? So then you would be in the positive. Yeah. So अगर तुम probability wise भी देखो तो obviously it's better to attempt the maximum number of questions that you can. Great. Yeah. So I think this is a very good way, you know, जो आपने समझाया अभी, the way of taking calculated risk. And my score started improving in the mock test, like as I started increasing the number of attempts. That's why. Great. So you understood, this is something I should keep doing. Yeah. ग्रेट. तो चलिए, ये तो बहुत अच्छे से आपने हमें एग्जाम डे स्ट्रैटेजी के बारे में भी बता दिया, पेपर कैसा गया ये भी बता दिया. एक चीज़ ये भी बता दीजिए, आफ्टर यू गिव दैट पेपर हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि रैंक आने वाली है? सो मेरा मॉक में हमेशा टॉप 10 में आया था. सो आई थॉट कि मे बी टॉप 100 होगा. डिडंट एक्सपेक्ट टॉप 20 क्योंकि पेपर से बाहर आके लगता है कि अरे ये गलत है वो गलत है. यू स्टार्ट रिकॉलिंग.
फिर कहीं आसपास में लोग कुछ बात करने हाँ, लगता ओ नो शायद हाँ, मैंने ये गलत लिखा था। तो कहीं आंसर तुम देख लेते हो गलती से, तो उसमें लगता है कि अरे अभी 10 रॉन्ग हो गए और कितने होंगे। तो आई वाज लाइक कि टॉप 100 में आई थिंक आ जाएगा, बट दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रैंक। अच्छा, पेपर क्लियर हो जाएगा, यू आर श्योर? हाँ हाँ, टॉप 100 में आएगा, दैट इज व्हाट योर गट फीलिंग yeah. इज। Okay, चलिए great. So I think it's been a very great journey आपका till now, and it really shows that you really love this subject and this profession. It really shows when you talk about the topics and the subjects. I can see आप कितने interest से and कितने अच्छे से बता रहे हो कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा. It just shows you like the subject and love for the profession. So if I was to just ask you, like आगे चल के अभी now since you need to choose also, what is your future plan currently? So I want to do general medicine क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, like all body systems, whatever is going wrong with the body, वो सब उसमें आ जाता है. So I want to do general medicine and I'm thinking of pursuing it. Great. And MC is your something that you're looking forward to? Yeah. So fingers crossed. Chali, fingers crossed. All the very best for that. Thank you so much. So अब we have actually touched on everything regarding the examination. थोड़ा सा और आपको जान लेते हैं. We have one section left. It's called the rapid fire round. Okay. जहाँ पे I'm just gonna ask you some very basic questions जिसके आंसर आपको एक word या एक लाइन में देनी है. ज़्यादा नहीं सोचना है. Okay. You ready for your questions? Yeah. Okay, so first thought in your mind when you saw, your first, class, practical class, जहाँ पे, there was body kept and you had to dissect it or even anything like that. What was the first thought that came? How am I going to do this? Okay, if you were given an option to, go back and relive any one year of your life, कौन सी होती वो? Second year. क्यों? We had a lot of trips, group trips. I made good friends in that year, so yeah. Great. If you had to take any 3 friends of yours to an isolated island and वहाँ पे आपको रहना है 1 महीने के लिए, तो किसको ले जाते आप? So I'll say their names. Yeah, sure. Yeah, so I'll take my sister. I'll take my best friend Juhi, and I'll take one other good friend Ashray. Okay, great. Yeah. So now, if suppose I was to, give you an option कि आप कोई भी एक super power अपने लिए select कर सकते हो, which one would you like to select? I think reading someone's mind. Okay. Yeah. Whose mind would you first want to read? I don't know. सारे पेपर जो क्रिएट करते हैं शायद उनके लिए. वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, so I'll do that. Okay, I'll wouldn't stick want to that. yeah. अच्छा, चलिए great. Last question is, if suppose you were made, say, in charge of the health of the country, minister आपको बना दिया जाए, so what would be that one major thing you would like a change to be brought in? Yeah, something that you would want the country to be working towards. I feel that I would like to strengthen the government setup. क्योंकि majority of patients go there, so वहाँ पे जहाँ facilities नहीं है, I would want to strengthen them. So we have a lot of facilities. I mean, a lot of ये सब programs और सब आ रहे हैं to benefit the poor. But I feel government setup को तुम जितना strengthen करोगे, it's better. क्योंकि वहाँ पे you have the best doctors because you have the resident doctors there who work 24/7. So उसको strengthen करना is very important, I feel. Great. Yeah. So I think very great answers आपके in terms of exam के बारे में पूछो या rapid fire में पूछो. You're very good with all of this. So I have something small here from Unacademy for you. Thank you so much. I hope you have a sweet tooth, even though you're a doctor. Keep it down. Yeah. Great. So this is for all the time that you gave. आप इतने दूर यहाँ पे आए हमारे सारे learners के लिए. You shared so much information. And Akanksha will be helping a lot of y'all later on also. So stay tuned for that. क्योंकि बहुत कुछ I know y'all will have a lot of questions इसके बाद भी कि क्या करना है, कैसे करना है. And since she's a senior for all of you, I'm sure we'll try to stay in touch with her so that she can keep helping a lot of y'all. And अगर आपके पास भी और भी questions ऐसे आते रहते हैं, तो do keep posting it to us, and we'll try to get answers from Akanksha for all her fellow batchmates, and whoever keeps coming also, we'll keep on pushing all those questions for you. And if you've still not checked out Unacademy subscription, then there's an ad that will be played shortly. Go and check that out for all your preparation requirements. And if you're a CTwT viewer, you can use the code CTwT, and that gets you an additional discount on your subscription. So go check that out. Great. So Akanksha, before I wrap up this episode, एक last चीज़ रह जाता है. We have, which is called tag a friend. So जैसे आज आप यहाँ पे आए हो, I would just want you to, request you to tag any other friend or family member जिन्होंने शायद इसी एग्जाम में या any other exam में टॉप किया हो.
so that our team, would invite them also for our future episodes? So I would like to tag Avnisha. She's my batchmate. Avnisha. Yeah, Avnisha, and she's from Medical College Baroda as well. She secured rank 76 this year. Wow. So I would like to tag her. Great. So Avnisha, जैसे कि आपने सुना Akanksha has tagged you, and बहुत soon हमारी टीम आपसे भी in touch रहेगी. Just inviting you here to come and share your preparation story, your journey in the MBBS, and what has happened, what has worked for you, so that you can also help all the other learners who are watching this. So we look forward to meeting you. So चलिए Akanksha, before I end this episode, I will make one last request. That is, हमारे जितने भी learners आपको देख रहे हैं, चाहे वो UG की तैयारी कर रहे हैं, PG की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, what would be that one message you would like to give to all of them? So I feel कि discipline बहुत important होता है. Whenever you are preparing for anything in life, exam हो या कुछ भी हो, discipline is very important. तो अगर आपको पता है कि इतना टाइम मुझे देना है, तो उसको use it wisely. And obviously, I would suggest to take proper breaks, because you cannot perform under pressure. And that's what I would feel. Yeah, that's it. So maybe an all the best for all of you. Yeah, all the best to all of you. And I know, I'm sure you'll rock it. Chaliye, so she's sure you will rock it. You should have that same confidence, because we all from the team of CTwT also hope that you rock it. And let's just crack these examinations. So thank you so much Akanksha once again for coming. मुझे personally बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. You have such a happy vibe, and you just make me feel that the entire MBBS and medical as a profession itself is so much fun, because the way that you explain it. So thank you for that. Thank you for coming. And how was your experience? It was great. I loved being here, and I loved being on this show as well. Chaliye. So we wish you all the very best, Akanksha. Have a great future, and we hope to hear a lot of good things from you in the future. Thank you so much. Thank you. Life and freedom.